So in the previous class, we were discussing about finding absolute maxima and minima for the bounded region. So today we will do few questions on it. So your question is find the absolute maxima and minima of the function on the closed triangular plate in the first quadrant bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 4 and y is equal to x. So what you have to do, you have to first see the region. What is the region? X is equal to 0. कौन सा वाला line होगा? y-axis. This. Yes. So this is x is equal to 0. Then y is equal to x is this and y is equal to 4 is this. Now just you can label it. Now first of all what we need to do, we have to find out the critical points in the interior. सबसे पहले हम इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और देखेंगे कि क्या क्रिटिकल पॉइंट इसके इंटीरियर में ही आ रहा है, राइट? सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट फॉर इंटीरियर critical points. What we need to do, we need to find out dx is equal to what? 2x minus of y equal to 0 and dy that is equal to dy will be equal to minus of x plus of 2y equal to 0, and this implies what is the value of x and y? 0,0. 0 comma 0. Now can you say these are the interior point? ये इधर ही लाई No, कर ma'am, रहा है they ना? are on the vertices of it. Yeah, so you can leave because आप obviously इधर निकालोगे ही. So you can also find out over here, but you will not say that these are interior critical point because it lies in the boundary. But ultimately you need to find out. So you will write not an interior point, however, boundary point. So d00 is how much? 1. So just what you need to do, you need to color this out या आप ब्रैकेट बना देना. फाइनली हम इसी से एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे कि कौन सा होगा. So this is one point you got, which is the boundary point, and now we will go along the boundary. तो सबसे पहले हम OA कंसीडर करते हैं. तो on boundary along OA. So along OA, what is our value? Here x is 0. So I can write this and my function will become y square plus 1. देखिए इधर ही मैंने 0 पुट कर दिया है. So मेरे पास क्या बचा? y square plus 1. Now I will find out if there is any critical point in this line. तो इस लाइन में अगर कोई फंक्शन के पास मैक्सिमम मिनिमा होगा along this line, we can find it out. So for this we will find out derivative of this, that is 2y which is equal to 0. This implies y equal to 0, x equal to 0. Again we are getting the same thing and we have already founded the value. So now what we need to do, we need to just find out the value. ये तो already हो चुका है. इसकी वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट में? इस पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,4. 0,4. So just we need to find out d at
0,4. What will be the value? 17. 17, right? तो फिर इसका हम क्या करेंगे, इसको भी हम कलर कर लेंगे. सो यू गॉट 1/here वैल्यू जिसमें मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, एक ये मिला. नाउ along you can write down A along this one is B, that is along AB. So here along AB your x is equal to y. So I can write b of x comma x and your function will become, इसी में अगर हम x equal to y कर दे तो मैम ये x² + 1 बन जाएगा. x square plus 1. मैम इसमें डायरेक्शन अलोंग OB नहीं लेंगे. ओ बी है. हाँ, this along OB, so your value आप x की y की जगह पे x रख दो, और ये कैंसिल हो जाएगा, so you will get x square plus 1. So what will be the value? 2x equal to 0. Again this implies x is equal to 0 and y equal to 0. Again you are getting the same coordinate where you are already founded this value. इसकी वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट की? 4,4. 4,4. So you just need to find out the 4,4. कितनी वैल्यू होगी इसकी? 4,4 पे बताइए. 17. 17. इसमें भी 17. ठीक है. Yes, ma'am. नाउ एक रह गया है, क्या है? अलोंग, क्या है? अलोंग ए बी, जहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 4 है. So I can write b of x comma y equal to b of x comma 4, and now your function becomes what? x² - 4x + 17. So now you need to find out whether there is any critical point in this line or not. So this one is equal to 0. This implies your x is equal to 2. 2 and y is equal to 4. So 2,4 इसमें लाई कर रहे हैं ना? 13. इधर Yes, देखो 2,4 कहीं पे इधर होगा. So that means that in this line there is something, मतलब ये तो नीचे का आपको बेस दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो होगा 2,3 पे कुछ कर्व आया होगा. So it is finding out this thing that there is one critical point along A comma B. So that means I need to find out 2, 4 that is equal to 13. Other points you have already calculated. इसके जो एंड पॉइंट्स थे आप कहीं ना कहीं निकाल चुके हो ना? ये भी आपका Yes, निकल ma'am. चुका है 0,4 पे, ये वाला भी निकल गया, ये वाला भी निकल गया. इसके अलॉन्ग में आपने सभी चीजें निकाल ली. नाउ जस्ट गो थ्रू दिस कलर्ड बॉक्सेस एंड टेल मी व्हाट विल बी द मिनिमम. अब आपको जस्ट कलर्ड बॉक्सेस, जो आपने बॉक्सेस बनाए हैं एक एक करके, उसको बस देखना है. आपको अपना एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बताना है. एब्सोल्यूट maxima is where? 17 at 4,4 and 0,4. At At 4,4 and 0,4. yes, at 0,4. And absolute minima? 1 at 0,0. So this one will be your answer. ये clear हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we will do one question with the rectangular domain. So the same question, find absolute maxima and minima, but now your function is different on the rectangular plate. So you need to find out absolute maxima and minima of this function on the rectangular plate. So first of all we just need to make the figure. इसमें क्या है, आपका x की वैल्यू
0 से लेके 5 है और y की वैल्यू -3 से लेके 3, यानी कि आपका रीजन कुछ ऐसे रहेगा, ये और 5 थोड़ा सा। So this one is your region, and here y is equal to -3, this is y is equal to 3, this is x is equal to 0, this is x is equal to 5. तो आपने सपोज करो ऊपर आपका फंक्शन आपने ऐसे करके काट दिया, नीचे ये बेस है, ऊपर आपको कुछ फंक्शन हो. Now you need to find out the absolute maxima and minima. So for that what you have to do, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट निकालना. सो फॉर इंटीरियर क्रिटिकल पॉइंट्स व्हाट यू नीड टू डू, px इक्वल टू कितना जाएगा, 2x plus y minus 6 equal to 0, and py is what, py will be equal to x plus 2y equal to 0. So if you solve this, what will be the value? This implies your x and y. Tell me. 4 comma -2. ये सभी का आ रहा है, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है Yes, इसको ma'am. निकालना. ओके, जस्ट ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है जैसे आप करते हो पहले. 2 इक्वेशन है, 2 अननोन्स है, जस्ट निकाल लीजिए, यू विल गेट दिस. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, you need to see whether this point lies in the domain or not. Just check. 4 -2 ये लाई करता Yes, है ma'am. कहीं पे? ठीक है, तो ये यानी कि इसको आपको कंसिडर करना है. सपोज करो कि ये 8 कॉमा -2 आता, तो 8 कॉमा -2 तो कहीं और होता ना, इधर कहीं पे, तो उसको आप कंसिडर नहीं करते. सो यू विल राइट देन क्लियरली. सपोज करिए आप 8,2, तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसके भी मार्क्स कटते हैं, इसलिए मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ. यू हैव टू राइट डाउन दैट दिस पॉइंट डज नॉट लाई इनसाइड द बाउंड्री, इट इज आउटसाइड द बाउंड्री, सो इट विल बी नॉट कंसिडर्ड. तो आपको लिखना पड़ेगा क्लियरली कि आपको समझ में आ रहा है कि आप सभी का मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि अगर मान लो आपका 8,-2 आ गया और आपने उसको भी कंसीडर कर लिया, और सपोज करो ये भी हो सकता है कि ये मैक्सिमा मिनिमा कुछ ज्यादा आ जाए, मतलब जो बाकी बाकी पॉइंट्स है, तो आप इसको भी कंसीडर कर लेंगे इस डोमेन में, जो कि ठीक नहीं है. सो यू हैव टू क्लियरली मेंशन दैट, बट हियर इट इज lying inside the boundary, so you will consider and you will find out t 4 comma -2. What will be the value? एक्सक्यूज मैम, -28. मैम मेरा 2 -4,2 आ रहा है. -4,2 इसमें देखिए सेटिस्फाई हो रहा है. -4 आपको 8 + 2 -6, ये वाला नहीं सेटिस्फाई कर रहा. देखिए इसको, आपका जो आंसर है -4, मैंने जब -4 लगाया तो -8 + 2 -6, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा. मैम ओके मैम. मैम जैसे बाउंड्री पे अगर हमारा पॉइंट आ रहा है सॉल्व करके, तो हम ये लिखेंगे दिस क्रिटिकल पॉइंट लाइज ऑन द बाउंड्री. हाँ, दिस क्रिटिकल, हाँ, लाइज ऑन द बाउंड्री, उसको आप निकाल सकते हो, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट भी हम कंसीडर करते ही हैं, इन पॉइंट्स को भी कंसीडर तो करते ही हैं. बाकी इसके बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, इन लाइनों को वो भी कंसीडर करते हैं, और बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट है. हम कॉर्नर पे भी आ गए तो भी बाउंड्री, क्रिटिकल बाउंड्री दोनों ही बोला जाएगा. ये वाला, हाँ हाँ, ये बाउंड्री पॉइंट का ही मतलब बाउंड्री का ही पॉइंट है, बट इसके बीच का पॉइंट वो इंटीरियर क्रिटिकल पॉइंट निकालता है, जो हम डेरिवेटिव से निकालते हैं. तो आप इसका वैल्यू बताइए कितना आ रहा है. मैम -12. -12. So you need to make one box for, and you need to see it afterward, जब सब निकल जाएगा कि कौन सा एब्सोल्यूट मैक्सिमम है. नाउ we need to go along the boundary one by one. So along AB,
तो हम कर देते हैं A, B, C, D. So if I go along AB, my x is equal to 0. So what will be the value? T0, y. तो इसमें आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कितना आ रहा है y स्क्वायर जस्ट बच रहा है ना, तो आई विल राइट y स्क्वायर. नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आई विल find out the derivative. This is 2y which is equal to, if I put equal to 0, this implies y is equal to 0 and x is equal to 0. So this is again you are getting like इस लाइन के along चलोगे तो ये वाला फंक्शन मतलब जो ऊपर फंक्शन है वो भी कहीं पे ऐसे करके कुछ कर्व आ रहा होगा, इसीलिए ये पॉइंट दे रहा है 0,0. So you need to find out t at 0,0. What will be the value of t at 0,0? 0. 0. 0. And at the corner, what is the corner point? ये आपका कौन सा है? 0,-3. ये आपका 0,3 है. तो t 0,-3 बताइए and t 0,3 बताइए कितना आ रहा है? 9. ये 9 आ गया. ये 9. 9. फिर आप क्या करो, इनको सारे को कलर कर लो. ये आपका फाइनल में चेक करना है कि कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा सबसे कम. So this we got along AB. Now we need to go along BC. So this is on this. You can see that your y is equal to 3. So what we will do? We will put y equal to 3. Now your function will become, इधर just y को 3 put कर दीजिए, कितना आएगा? x square minus 3x. X square minus 3x Plus 9. Plus 9. plus 9. Right. Now we need to differentiate this. So I will get 2x minus of 3 equal to 0. This implies x is equal to 3 by 2 and y is equal to 3. Now just see this, this lies inside this only, and therefore my p 3 by 2 comma 3 will be what? The value. इसकी वैल्यू कितनी होगी? और ये वाले का तो निकाल ही चुके थे 0, ये वाला रह गया. ये कौन सा पॉइंट होगा? 5,3. 5,3. हाँ 5,3. 27/4. कौन सा वाले का बता रहे? 3/2, 3. 27/4. ओके. और इसका इसमें 5 पुट कर दो. 19. 19. इज इट ओके? अब आपके पास दो के अलॉन्ग में आपने निकाला ए बी और बी सी के अलॉन्ग में. नाउ यू नीड टू गो अलॉन्ग सी डी और ए डी. पहले हम ए डी कंसिडर कर लेते हैं अलॉन्ग ए डी. नाउ सी अलॉन्ग ए डी. नाउ अलॉन्ग ए डी व्हाट इज द कंडीशन? y is equal to -3. So t x minus 3 will be equal to x square minus 9x plus 9. Now you need to find out the derivative of this to find out the critical point. This gives you x is equal to 9 by 2 and y is equal to -3. y तो इधर से पता चल जाता है कि केस में -3 है. Now what you need to do? You need to find p at 9 by 2 and -3. ये निकालिए. और इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उसमें ये तो हम सॉरी ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके. ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 5, -3. सो आई विल ऑल्सो राइट p 5, -3. इन दोनों की मुझे वैल्यू बताइए. 5, -3 is -11. -11. ओके. -45/4. -45/4. So from here we are again getting two candidates.
Now the last path, that is along x equals to 5. CD, that is x equal to 5. अब इसमें x को 5 और y को y रहने दीजिए, क्या आ जाएगा आपका फंक्शन? y square plus 5y minus y. y स्क्वायर Plus 5y minus y. minus 5 ना. So here this one will become, this implies that y is equal to minus 5 by 2 and x is equal to 5. Again you need to find out the value of t minus 5, t 5 comma minus 5 by 2. ये बताइए क्या होगा. और इसके बाकी के साइड का तो हम निकाल चुके हैं ना, इसका भी हो चुका है, इसका भी हो चुका है ना. Yes, ma'am. हाँ तो इसकी बस वैल्यू बता दीजिए. Minus 45 by 4. अब क्या करना है, अब सारा काम आपका हो गया. अभी सारे इन बॉक्सेस में से आपको देखना है कि कौन सा सबसे छोटा और कौन सा सबसे बड़ा है. सो जस्ट गो थ्रू द लिस्ट. मैं दिखा रही हूँ आपको. इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे मिनिमा है. Maxima is 19 and minima is minus 45 by 4. Ma'am, minus 12. And minus 12. Minus 12. Yeah, sorry, minus 12. सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. मैम इसमें ऐसे भी हो सकता है जैसे किसी लाइन के अलोंग चेक कर रहे हो, जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो आउटसाइड लाई कर जाए. कैसे? जैसे हम अलोंग एडी चेक कर रहे थे, अब हमारा ऐसे भी हो सकता था ना कि जो पॉइंट आएगा वो आउटसाइड लाई कर जाए. हाँ ओके. तो उसको कंसीडर नहीं करना. तो दिस वन. मैम हाँ मैम जैसे अगर हम लाइन के अलोंग चेक कर रहे हैं वो तो बाउंड्री पॉइंट से आएंगे, वो बाहर तो कभी आएंगे ही नहीं क्योंकि वो बाउंड्री पर ही होंगे. जैसे आपने x इज इक्वल टू 0 सेट कर दिया है, इसके अलावा में आप ये सेटिंग करते हो ना. यस मैम. हाँ तो y की वैल्यू हो सकता है कि -3, या जैसे इसमें x इक्वल टू 0 है तो y इज, अगर आपके सपोज करो कि इधर आ जाए y की वैल्यू कहीं और ना, इसी लाइन में हो लेकिन -8 ऐसे करके कुछ आ जाए, तब यू यू विल से दैट इट डजंट लाई. मतलब होगा तो इसी लाइन में लेकिन इसके हो सकता है आउटसाइड -3 के. अभी तो इस केस में इधर ही है. ओके मैम. हाँ जैसे इसमें एक चीज फिक्स किया ना, दूसरा वाला तो नहीं, इधर कहीं पे और भी हो सकता है ना, इसी लाइन का लॉन्ग में कहीं और. तो तब आपको लिख देना है कि डजंट लाई इन द गिवन डोमेन. बस एक लाइन लिख दोगे तो हो जाएगा. दिस पॉइंट ऐसे करके जैसे ही आएगा, दिस पॉइंट डजंट लाई इन द डोमेन. बस आपका मतलब लिखना पड़ेगा ये आपको, क्योंकि इसमें भी कुछ मार्क्स वो होते हैं, अलॉटेड होते हैं कि आपको पता है कि नहीं किसको कंसिडर करना है कि नहीं करना. तो नाउ फाइनली एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपने कितना बताया था? 19. 19 At 5,3. at 5,3 and मिनिमा आपने Minus 12 at 4, minus 2. Yes, ma'am. -12 at 4, 4, minus 2. -2. तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल. नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं. फाइंड टू नंबर्स a and b with a less than such that ab has its largest value. So you need to find out the two numbers a and b
such that this integral has its largest value. So for solving this, firstly you need to find out this function. So I will call it as let f of a comma p is equal to dx. Now can you solve this integral and tell me what will be the value? मतलब इंटीग्रल को सॉल्व करिए जैसे 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और a और b हमें इसमें वैल्यू लगानी है. मैम बट a इक्वल टू b दिया हुआ है तो 0 हो जाएगा ना. हम्म. बट a इक्वल टू b करके तो 0 हो जाएगा फिर. हाँ बट आपको इक्वल टू 0 अगर आ जाए मतलब कि तो फिर आपका फंक्शन की वैल्यू ही 0 हो जा रही है. तो आपको तो लार्जेस्ट निकालना है ना. दूसरा केस आपको देखना पड़ेगा जबकि a लेस देन b हो. अगर आपका a इक्वल टू b होगा तब तो आपको दिख ही रहा है कि ये a इक्वल टू आप b कर दो तो ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है तो वो मैक्सिमा अगर होगा तो ठीक है वरना आप इसमें अब लेस देन कंसिडर करो. मतलब when a equal to b then Okay, your value of f is 0. ये एक आया possibility. When a is less than b then you are finding out this. So what will be the value of integral finally बताइए. मैम 36 b minus a minus 3 ऐसा. b square minus a square हम्म. minus 2 b cube minus a cube हम्म. upon 6. इसका Yes, ma'am. Total divided by 6. this whole divided by. Yes, ma'am. Is this okay? yes ma'am. Please. Yes, ma'am. Okay, now what we need to do, see this, we got the function of f in a and b. Now we will find out f of a and f of b. मतलब आपका जो वेरिएबल x और y में ना रह के अब a और b में हो गया है. तो ये आपको डिवाइड बाय 6 चलिए जैसे भी लिखा है आप अगर इसको निकालोगे f of a तो कितना आ जाएगा. You will get an equation something like this. -6 plus a square. ऐसे ही आएगा ना कुछ. Yes, ma'am. So if you want to find out the critical point, you will do derivative with respect to a and with respect to b and equate it to 0. Then you need to solve these two equations. क्या आ जाएगा इन equations को solve करके. 2 -3 a and b की सेम वैल्यू है. 2 2 -3. -3. ये b की वैल्यू -3 है. नहीं मैम a की भी यही है एंड b की भी सेम वैल्यू 2 -3. Okay. So now tell me what will be the मतलब हम इसमें से कौन सा वाला वो चूज करेंगे जैसे. -3,2. -3,2. So therefore a will be -3 and b will be 2. और इसमें आप निकालोगे a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू इधर पुट करके तो आप देखोगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही क्योंकि a इक्वल टू b में भी आपने देखा था क्या हो रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 0 हो जा रही है फाइनली. अब a ये तो हो नहीं सकता है बिकॉज वी आर गिवन a इज लेस देन b. So ultimately we are getting this combination which will work and you are getting your answer. Now I will write down a question and you need to solve this. Find इसी तरीके से two numbers a and b with a less than or equal to b such that a be 24 minus x minus x square has its largest value. This is your homework. अभी आपका टाइम हो रहा है तो Ma'am, whole power is 1/3.
Yes. Just think about this, that how can you solve this one? And another is, I will write down the flat circular plate like this, which is a flat circular plate, has the shape of the region x square plus y square is less than or equal to 1. The plate, including the boundary where x square plus y square equal to 1 is heated, so that the temperature at the point x, y is, ये आपका टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ है, x square plus 2y square minus x. Find the temperature at the hottest and the coldest points on the plate. आप लिख दो, find the temperature at the hottest and coldest point on the plate. यानी कि आपका ये बाउंड्री दिया हुआ है और कह रहा है कि जो टेम्परेचर फंक्शन है वो ऐसे फॉलो हो रहा है. आपका टेम्परेचर जो फंक्शन है वो इसके थ्रू दिया हुआ है. And now you need to find out the hottest and the coldest point on the plate. So these two are your homework, and we have almost finished our chapter of partial derivatives. I will take one small friendly test on the next class. तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना. और फ्रेंडली टेस्ट है, कोई डरने वाली बात नहीं, इसका कोई मार्क्स आपके, बस हम डिस्कशन करेंगे जिस पार्ट में किसी को डिफिकल्टी होगी उसको. ठीक है मैम, ये जो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था मैम, इसमें हाँ. आपने सिंपली सेपरेट करके उसे a और b को x y की तरह लेके तो सॉल्व किया था ना, जैसे हम पहले कर रहे थे. हाँ, ठीक है. वैसे ही कर रहे थे, बस क्योंकि इसमें a और b में कहा गया तो जस्ट इसको इंटीग्रेट करके एक फंक्शन बना लीजिए a और b का, और उसको a के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट किए b के रिस्पेक्ट में, और इसी को इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले.